10 तारीख को कर्नाटक में इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस मौके पर बेंगलुरु साउथ हल्के के कांग्रेस के उम्मीदवार R.K. रमेश ने बेंगलुरु सिटी की जामिया मस्जिद पहुंचकर मौलाना मकसूद इमरान साहब से दुआ की दरख्वास्त की है। इस मौके पर R.K. रमेश ने मकसूद इमरान साहब से बात करते हुए ये कहा कि अगर आने वाले दिनों में बेंगलुरु साउथ की अवाम उनको जीता कर लाती है तो वो आने वाले दिनों में अवाम के लिए काम करेंगे। मौलाना मकसूद इमरान साहब ने भी अपनी ख़ास दुआओं में उनको दुआएं देते हुए ये कहा कि आने वाले दिनों में अवाम आपको चुन कर लाती है तो आप जो है लोगों की बेहतरी के लिए काम करें, लोगों के रोज़गार के लिए काम करें। इस तरह की नसीहत मौलाना मकसूद इमरान साहब ने देकर उन्हें विदा किया। आइए तफसीलात जानते हैं, बने रहिए न्यूज़ 4 के साथ। ताज़ा तरीन जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ಗುರುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಇಮ್ರಾನ್ ಮಸೂದ್ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ, ಸಮಾಜ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೈತೆ, ಗೆಲ್ತೀಯ ನೀನು, ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗವನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡು ನೀನು. ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಮತ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದಲ್ಲಿ. ಹಿಂದೆ ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ 3 ಸಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು, ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ರು, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 3 ಸಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ 1,22,000 ಮತಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತಾದಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಯ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 75,000 ಮನೆಗಳಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, 1,00,000 ಮನೆಗಳಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಫ್ರೀ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಫ್ರೀ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಥರ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮುಖಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಸಾರಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಮುಖ ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರ ಏನು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ಯತೀತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಹೋಗಿ ಭಾನುವಾರ ಹೋಗಿ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಹೋಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಮಸೀದಿ ಏನಿದೆ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೂಡ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ BJP ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, JDS ಇಲ್ಲ. JDS ಹೋದ ಸಾರಿ 36,000 ತಗೊಂಡಿತ್ತು, ನಾನು 1,22,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು 1,52,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು 30,000 ಇತ್ತು. ನನಗೆ 15,000 ಬಂದಿದ್ದರೆ ಆ ದಿನವೇ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ JDS ಇಲ್ಲ. JDSಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು BJPಗೆ ಹಾಕ್ತಂಗೆ ಮತ. ಸರ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅದೇ ಈಗ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು JDS ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಇವರೇ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಇವರೇ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೀವು JDSಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತಗಳನ್ನ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಆ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಸರ್, ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನು ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಹೋದ ಸಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು 1,22,000 ಮತಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸಾರಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಗೆದ್ದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನನಗೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. कल मेरे पास बेंगलुरु साउथ के उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी साहब आए थे, उनके साथ कुछ साथियां भी आए थे। अब वो सारी बातें तो मैं बता नहीं सकता कि कांग्रेस के फेवर में, कांग्रेस के ख़िलाफ़ उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला।
इससे मुझे कोई गर्ज नहीं है। राजगोपाल रेड्डी के फेवर में मैंने बयान दिया है कल, वो मेरी ज़ाती राय है। अब जबकि जमीयत उलमा का लेटर और जमीयत उलमा की तरफ से, मुस्लिम मुत्तहिदा महाज की तरफ से, उलमा इकराम की तरफ से बाकायदा ऐलान हुआ है और मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि हमारी इज्तिमाई राय के साथ आप इख्तलाफ क्यों रख रहे हैं। तो मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि मेरी ज़ाती राय थी। जमीयत उलमा मुस्लिम मुत्तहिदा महाज शहर के मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम जो फ़ैसला करते हैं हम उसके ताबे हैं, उनसे हटकर नहीं है, उनसे बढ़कर मेरी बात नहीं है। जो वीडियो वायरल हो रही है, तमाम हज़रात से मेरी गुजारिश है उस पर तवज्जो न दें, बल्कि मुस्लिम मुत्तहिदा महाज जमीयत उलमा ने जो फ़ैसला सारे मुसलमानों के मफाद में किया है, सोच समझ कर किया है, आप हज़रात उस फ़ैसले पर अमल करें, मेरी बात पर तवज्जो न दें। तो अब आपकी ज़ाती राय क्या है मौलाना? कल आपने अपनी ज़ाती राय रखी। मेरी ज़ाती राय, ये मेरी ज़ाती राय थी। राजगोपाल रेड्डी जीत कर आए तो बहुत अच्छा था बोलकर, मगर उलमा इकराम मुस्लिम मुत्तहिदा महाज वो कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करते जो कौम के मफाद में ना हो। कौम के मफाद को रखकर, तमाम अच्छाइयों को देखकर फ़ैसला करते हैं। तो मैं भी उसके ताबे हूँ, बड़ों के ताबे हूँ, उससे हटकर मेरी राय नहीं हो सकती, मेरी राय बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात सोच समझ कर फ़ैसला करें, मुत्तफ़िक़ मुत्तहिद होकर जमीयत उलमा मुस्लिम मुत्तहिदा महाज जो फ़ैसला करती है उस पर अमल करें और अपना हक़ राय दही उनके बताए हुए तरीक़े पर, उनके बताए हुए उम्मीदवार पर। आमिर शरीयत जो हैं उन्होंने भी दुआ की है राजगोपाल रेड्डी के हक़ में। मैंने नहीं कहा था, मैं जी, उन्होंने बात करी। मैं नहीं कहा था वो मुझे इल्म में भी नहीं है। उनके साथियों ने कहा कि आमिर शरीयत दुआ किए, ज़ैनुल साहब ने दुआ किया और दूसरे उलमा इकराम दुआ किए। जाकर मुलाकात करने, दुआ करने में अलग बात है, किसी के हक़ में ऐलान करना अलग बात है। इज्तिमाई तौर पर जो ऐलान होता है वही अहम है, उसी को अहमियत देना चाहिए। अगर हम उलमा इकराम ऐसी कोई चीज़ हम नहीं करना चाहते जो इज्तिमाई काज को नुकसान पहुंचाती हो। इज्तिमाई फैसला क्या लिया गया उलमा इकराम की जानिब से? उलमा इकराम की जानिब से कांग्रेस के फेवर में मुस्लिम मुत्तहिदा महाज का बाकायदा ख़त आया है। अब वो जो फैसला करते हैं वो बहुत अहम है। उसी को कौन उम्मीदवार है यहाँ से? आर के रमेश जी, बताएं मौलाना। ये मैं उनसे तो ज़्यादा जो इज्तिमाई तौर पर मुस्लिम मुत्तहिदा महाज उलमा इकराम फ़ैसला करते हैं उसके ताबे है, तमाम उम्मत उसके ताबे है, उसको मानना बहुत ज़रूरी है, वरना नुकसान होगा हमारे लिए भी और आखिरत में भी उसका नुकसान होगा। 10 तारीख को इलेक्शन है, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2, 3-3 कैंडिडेट खड़के हैं, ये वोट डिवाइड होने की भी बहुत चांसेस है। और जो बड़े कैंडिडेट्स हैं, आप आवाम के लिए क्या हम अपील देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ये मई 10 को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, इस बार के इंतखाबात एक तारीख़ी इंतखाबात और एक इनक़लाबी इंतखाब होने जा रहा है, क्योंकि अब तक के हिंदुस्तान की इतिहास में अब तक के जो इंतखाबात हुए वो एक तरफ, इस बार का जो इंतखाब होने जा रहा है वो एक तरफ है। क्योंकि इस बार आज पूरी कौम के पर एक बहुत बड़े मसले जैसे आके खड़े हैं, जैसे आप तमाम पूरी आवाम जानती है कि अज़ान बंद करा दिए, हलाल कट ला लिए, बुरखे का मसला, हिजाब का मसला ला लिए, NRC ला लिए, और ऐसे बहुत हमारे सब में बड़े हमारे बहुत सारे नौजवानों को जो गवर्नमेंट में काम मिलते थे, हमारा रिजर्वेशन कट कर दिए ये तो। और आने वाले दिनों में और इनके बहुत बड़े मंसूबे हैं। अगर इस मंसूबे को हम पूरे खड़ाएंगे
खड़ाएंगे तो हमको सुकून और चैन मिलेगा। ये सुकून और चैन किसके हाथ में है? आज हमारे कौम के हाथ में है। आज हमारी अगर कौम फिर इस मरतबा भी कुछ बेफामी करी, अपनी ताकत ना बताई, अपनी ताकत की बुनियाद ताकत जाके वोट की बूथ में अगर नहीं डाले, तो इस मरतबा भी फिर एक मरतबा फिर बीजेपी पे हुकूमत करेगी। फिर 5 साल के लिए हम लोग तकलीफ़ उठाना है। मैं आजिज़ाना गुजारिश पूरी कौम के लिए, कर्नाटक की कौम के लिए गुजारिश करता हूँ, हमारे पूरे उलमाए कराम, हमारे पूरे इदारे, हमारे पूरे मुसलमान सियासतदान ये फ़िक्र लगा के बैठे हैं कि इस बार किसी तरह से बीजेपी को इस बार बाहर रखना, क्योंकि कर्नाटक के अंदर अमन पसंद लोग रहते हैं। हिंदू मुसलमान एक भाई की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर ये अमन चाहिए, अगर हमारे को हमारा हक़ मिलना है, तो मैं आजिज़ाना गुजारिश पूरी हमारी कौम के लिए करता हूँ, अपने वोट को ना बेचें, अपने वोटर आइडेंटिटी कार्ड्स दूसरों को मत बेचें। और इसको अगर बीजेपी को गिराना है, अगर बीजेपी को शिकस्त देना है, तो इसके मुकाबले का पार्टी कांग्रेस है। तो इस कांग्रेस पार्टी को इस मरतबा पूरे तायद करें, तायद करके कांग्रेस को जिताएं। पूरे जहाँ कहीं भी मुसलमानों की आबादी है, वहाँ पे बहुत सारी बड़ी साजिशें चल रही हैं कि मुसलमानों के किसी तरीके से मुसलमान वोट ना जाए, मुसलमान के आइडेंटिटी कार्ड ले, ऐसे बहुत साजिशें चल रहे हैं। मैं हमारे अवाम को, हमारे पूरी कौम को ये आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ, एक ज़िम्मेदार होने के नाते, एक हज कमेटी का मैं चेयरमैन रह चुका हूँ, इसके नाते मैं पूरे अवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि इस मरतबा आप मेहरबानी फरमा कर कौम की भला बहबूदी को आगे मद्देनज़र रखते हुए काम करें। अपनी ज़ातियात कोई अपनी ज़ातियात को छोड़ दें। मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ पार्टी में रहें, जनता दल में हैं बहुत सारे हमारे भाई, बीजेपी में रहें आप पार्टी में, लेकिन जब कौम का मसला आता है तो मेहरबानी से कौम के मसले को ज़्यादा अहमियत दें। हमारे ऊपर इस बार हालात ना आए बोल के आप तमाम एक होकर इस बार आजिज़ाना गुजारिश करता हूं कि आप कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताएं। जैसे बेंगलुरु साउथ में भी हमारे कैंडिडेट है आर.के. रमेश हैं। आर.के. रमेश को भी पूरे इदारे जितने भी हैं, पूरे उलमाए कराम एक होकर उनको तायद किए हैं। तो आप मेहरबानी से आर.के. रमेश को उनका सीरियल नंबर 4 को भी तायद करते हुए जाएं। जितने भी बेंगलुरु साउथ के जितने भी 80,000 वोट है मुसलमानों के, ये बहुत बड़ी ताकत है हमारी। इस ताकत को इस मरतबा मेहरबानी से ज़ाया होने मत दें, किसी की बातों में ना आए, क्योंकि मैं सुनने में आ रहा है कि कोई चंद लोग इसको गलत बोल रहे हैं। ये ऐसा कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि कांग्रेस इस मरतबा हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बराबर छाट के 3-3 मरतबा 4-4 मरतबा सर्वे करके जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसी को टिकट दे के हैं। तो इसको नज़र रखते हुए आप तमाम अवाम इस बार कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताएं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, न्यूज़ शाया हुई है कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो कम्युनल माइंड रखते हैं और जेडीएस के जो उम्मीदवार हैं वो एक सेक्युलर माइंड रखते हैं। उनको टिकट मिल रहा था, इसलिए मुसलमान जो है कांग्रेस के उम्मीदवार से नाराज़ हैं। तो आप भी आज कांग्रेस के एक लीडर हैं, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। मैं उतरली ब्लॉक का माइनॉरिटीज़ वाइस प्रेसिडेंट। बेंगलोर विधानसभा क्षेत्र जो बेंगलोर साउथ है, इससे 3 एस्पिरेंट थे। एक आर.के. रमेश, दूसरा राजगोपाल रेड्डी, तीसरे को किशोर। लगभग 6 महीने से सब मिलजुल के काम करते थे। एक 3 सर्वे हुआ कांग्रेस पार्टी की तरफ से आर.के. रमेश के बारे में, राजगोपाल रेड्डी के बारे में और किशोर के बारे में। ऑलरेडी पिछली बार आर.के. रमेश इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े थे, 1,22,000 वोट लिए थे वो, बल्कि पहले जितने भी कांग्रेस से खड़े थे इतने सारे वोट नहीं लिए थे। पहली मर्तबा आर.के. रमेश 15 दिन का वक्त रहने के बावजूद उनका जो इलेक्शन का जो सिस्टम था उस वजह से 1,22,000 वोट उनको मिला था। और ये पूरा सर्वे करने के बाद किए कि भाई ये सेक्युलर माइंडेड हैं, ना कि अभी जो दूसरे लोग जो कम्युनल कह रहे हैं, ये कम्युनल नहीं है। अभी उनकी पिछले ज़िंदगी के बारे में तो हमारे को नहीं मालूम है। सर्वे रिपोर्ट जो है वो आर.के. रमेश सेक्युलर माइंडेड है। नहीं, बात ये आ रही है कि आर.के. रमेश से अच्छे उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी हैं। हाँ, अगर मुसलमान ये होकर राजगोपाल रेड्डी को जिताते हैं तो मुसलमानों के लिए सहूलत यहाँ पर अच्छी होगी। आर.के. रमेश से ज़्यादा राजगोपाल रेड्डी मुसलमानों के साथ अच्छे ताल्लुकात में हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, इसके बारे में हम राजगोपाल रेड्डी क्या हैं
वो उसके बारे में तो हम नहीं बोल सकते हैं। हम आर के रमेश के बारे में बोल सकते हैं कि भाई ये सेक्युलर मैंडेट हैं, जो भी मुसलमानों को सहूलत के वास्ते जो भी काम होना इंशाल्लाह काम होगा। और दूसरी बात है, कांग्रेस पार्टी से अगर वो कम्युनल है तो किसी भी हालत में टिकट नहीं देते, सेक्युलर मैंडेट को टिकट देते हैं। तो आपकी क्या अपील है मुसलमानों? मेरी अपील है, मेहरबानी से वोट को ज़ाया मत कीजिए। मेहरबानी से आर के रमेश सीरियल नंबर 4 इनको वोट देकर जिताइए। इंशाअल्लाह इनकी जीत होगी और हम इनसे जो भी काम होना इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इंशाअल्लाह हमें भी साथ में मिलके काम लेंगे।